हाँ वैभव। Good morning. Good morning, sir. Good morning. Now see, today we are going to learn some more identities, trigonometric identities, on which the coming questions of integrations are based. And the basic identity is cos A plus B. You can see here, that is cos A cos B minus sin A sin B. When you take cos A minus B, it will be cos A cos B plus sin A sin B. When you add them, then you will get this negative positive will be cancelled, twice of cos A cos B. And This call is now being recorded. when you will subtract them, subtraction from cos A plus B, cos A minus B, this is negative, this is positive. If we are writing cos A plus B minus cos A minus B, then A plus B is negative. When you multiply minus, this will also be negative, means the sign will be changed. So the first part will be cancelled, second part will be added, minus 2 sin A sin B. This is cos A plus B minus cos A minus B. Now if we have integration of cos x cos 2x dx, then it is similar to cos A cos B, but 2 is not there, so we multiplied by 2 and divided by 2. And if you see in the book, question number 2, 3, 6, 7, these are the questions which are based on these two identities. But in both the identities, trigonometric functions are same, cos cos or sin sin. What about with one is sin, other is cos? Like in question number 2, sin 3x cos 4x is there, which is not similar. For that we have to do similar practice, similar work for the formula of sin A plus B and sin A minus B. So these is for such type of the question. Now for sin A plus B, it is sin A cos B plus cos A sin B, and sin A minus B
equal to sin A cos B minus cos A sin B. And when you add them, sin A plus B plus sin A minus B, then we will get, by adding them, this will be cancelled. So 2 sin A sin B, sin A cos B. So if alternatively one sin and one cos is there, then you have to think for A plus B of sin and A minus B of sin and their addition. If sin is first, cos is second, then it will be plus. If you subtract them, now by subtracting this, the sign will be changed. So first part will be cancelled, second part will be added, 2 cos A sin B. So these two more are here, two are there. Total we will have 4 identity. इन 4 आइडेंटिटी पर बेस्ड हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x, cos 4x, cos 6x, these identities are only for 2 functions, but if there are 3 functions, then we also use the same identity, but it will be used 2 times. So instead of doing question number 2, we are going to do question number 3, in which the identity will be used 2 times, and then similar identity you can do second also after that. But please see carefully and learn these 4 identities. It is very simple. Cos A cos B, if similar ratios are there, both are cos, then cos A plus B plus cos A minus B. If similar are there, both are sin, cos A plus B minus cos A minus B, but minus 2 sin A sin B. If you want to have 2 sin A sin B positive, then change this order. Cos A minus B, this minus will come here and change their order. So cos A minus B will be plus and cos A plus B will be negative. तो जैसे आप चाहें वैसे याद कर सकते हैं. 2 sin A sin B will be cos A minus B minus cos A plus B. Same 2 sin A cos B, then sin A plus B plus sin A minus B, तो 2 sin A sin B आएगा. और अगर हम 2 cos A sin B लेना चाहते हैं तो sin A plus B माइनस sin A minus B हो जाएगा. इस तरह से हम सेकेंड, थर्ड, सेवेंथ, सिक्स्थ इनको कर सकते हैं. जो लोग बाद में आए हैं प्लीज़ नोट डाउन कर लें इसको, और स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, बट प्लीज़ याद करिए, रोज़ फार्मूले लर्न करिए. एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी उठिए, 9 o'clock आइए. एंड वन मोर थिंग, कुछ लोग आते हैं 1 मिनट देखा कोई नहीं है तो वापस चले जाते. 1 मिनट मेरे से बात कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते क्या? अगर कोई नहीं है क्लास में तो क्या यू विल गो आउट? ब्लड है तो क्या, आवाज तो क्लियर है ना? मीन्स इट डजेंट लुक नाइस. समबडी इज कमिंग, सीइंग एंड देन गो बैक. Am I not
एम आई ए पर्सन लाइक दिस कि जिससे आप 2 मिनट भी बात नहीं कर सकते? जब तक बाकी लोग आएंगे तब तक हम जनरल टॉक कर सकते हैं ना. सो इट इज़ नॉट गुड थिंग, है ना. आप अगर टाइम पे उठ गए हैं, टाइम पर रेडी हैं, तो वी विल स्टार्ट डिस्कशन. इवन आई कैन टीच at sharp at 9 if somebody is present. I don't have any problem, है ना. So now we are going to see the application part. So question number पहले 3 देखते हैं. cos 2x, cos 4x, cos 6x. पहले हम इन दोनों को लेंगे और इसको 1/2 2 cos 2x cos 4x करके cos 6x को बाहर रखेंगे. 2 cos a cos b अभी बताया था फार्मूला. ब्लर आ रहा है. व्हाट कैन आई डू? क्या करना चाहिए मुझे? सर आप वो राइटिंग टैब ले लीजिए सर. कौन सा? सर अभी तो अब तक 2-3 लिंक दे. सर राइटिंग टैब आता है सर, उसमें लैपटॉप पे डिस्प्ले करता है, तो आप लैपटॉप की स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे तो सबको दिखेगा जो आप लिखेंगे. बट उसमें बहुत छोटा स्पेस होता है, मैंने देखा था. अब हमको इतना लंबा लंबा स्पेस टैब लिखना पड़ता है, कैसे आएगा? नहीं सर, वो टैब बड़ा होता है लेकिन साइज तो अच्छी आती है उसमें. मैंने देखा था एक बार करके उसको भी. सर करके लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती. स्क्रीन तो बड़ी रहेगी लैपटॉप की. नहीं, जिस टैब पे लिखते हैं ना, जैसे इतना लंबा स्टेप लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऐसी 4-5 स्टेप. हाँ तो सर इसको उसमें फिर मिटाना पड़ता है ना बार बार. चलो आई विल देखता हूँ, आज देखता हूँ. अभी वैसे हार्डली मैटर 1 वीक. और सी 1 वीक इज लेफ्ट, देन वी विल स्टार्ट लाइव क्लासेस. स्कूल आना शुरू कर ही देंगे. आप लोग आ रहे हैं कि नहीं? आप लोग 21 से आ रहे हैं ना? नहीं सर 21 से तो नहीं कराएंगे सर जल्दी. उससे भी जल्दी 21 जल्दी मतलब सर आराम से. अभी से थोड़ा रेस्ट करेंगे करते पढ़ाई की पूरी के. ओह चलिए खैर. तो आप कॉपी में कर लो. आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी? यस सर. आप बस तो आवाज सुन के कर लो. आपको क्या करना है, cos 2x और cos 4x के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 को 1/2 बाहर कर लें और यहां पर फार्मूला लगाएं. 2 cos a cos b. 2 cos a cos b आइडेंटिटी होगा. दोनों जगह cos आएंगे क्योंकि ये cos सेम है. cos a plus b and cos a minus b. So 2x plus 4x and cos 2x minus 4x. एंड दोनों के बीच में एडिशन आएगा क्योंकि दोनों cos हैं तो प्लस होता है. एंड cos 6x dx. अब आपको क्या करना है, पहले तो सॉल्व कर लें. सो इट इज cos 6x प्लस cos माइनस 2x आएगा, लेकिन माइनस 2x प्लस 2x ही होता है. cos माइनस x इज cos x. सो वी विल राइट लाइक दिस ओनली. cos माइनस x इज इक्वल टू cos x.
Now we will multiply it. This cos x will come inside. So it will become cos square 6x. स्प्लिट कर लिया, उसको इसके साथ अलग कर दिया और 1/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन पुट अ ब्रैकेट बिफोर आफ्टर 1/2. सो दिस विल बी आउट एंड देन दिस इज cos 2x into cos 6x dx. Since it is also similar to same this one, so we will multiply and divide by 2 here and here. It is very long step. We can avoid to write it again, so we can multiply and divide by 2. Firstly, you simply multiply it and then you can do it. But this 1/2 is separate. If you want to remove the bracket, then it will be 1/2 and this will be 1/4. So 1/2. Now cos square. Yesterday I told you how to do integration of cos square x. Any one of you can tell me how we can simplify this? सर वो कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है. Very good. One thing. Second, और क्या याद है कल की क्लास का? राजा, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कल बताया था ना मैंने. नहीं कर रहे हो, कुछ भी रिवीजन नहीं कर रहे हो आप लोग. 1 minus sin x upon रचित, जी सर, एक सेकेंड सर. रचित, यस सर. टेस्ट दिया आपने? ट्यूसडे टेस्ट वो सर क्यों नहीं दिया? सर वो मैंने ओपन करके देखा था, वो मुझे समझ में नहीं आया. कुछ भी एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आया? सर मैंने स्टार्टिंग की ट्राई की तो मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने ट्राई नहीं किया. और उसके बाद मेरे से बात करना भी ट्राई नहीं किया. कल क्लास थी, टेस्ट था, कल टेस्ट का मैं डिस्कशन कर रहा था नाइट में. अगर नहीं बन रहा है तो कुछ करना है ना बेटा, एफर्ट लगाने हैं ना. आपको मालूम, सिंपल, जिन लोगों से भी जिन्होंने टेस्ट दिया बहुत अच्छा किया, नहीं दिया किसी भी रीजन से, आपको सिर्फ एक सेंटेंस लर्न करना है. एक सेंटेंस कि सर मेरे से टेस्ट नहीं बना, मैं क्या करूं. आपको सिंपल ये बोलना है मेरे से. बाकी तो फिर कंटिन्यूसली मैं ही बोलूंगा अगले आधा घंटे तक. सर ये होगा क्या सर? माइनस के साइन एक्स, अच्छा माइनस के साइन एक्स कॉस एक्स बाय 6. कल मैंने बताया था cos 2x is 1 2 cos square x minus 1. आप कल सोच रहे होंगे कि आज ये यूज नहीं होगा, देख लो आज फिर यूज हो गया. ये लोग ये सोच रहे होंगे ना कल कि क्या करना रिवीजन करके, अब थोड़ी ये यूज होने वाला है. देख लो अभी कल भी यूज हो सकता है, तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, आपको बार बार करना ही पड़ेगा. आदर्श करेक्ट है. तो ये 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस cos 2x और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा cos स्क्वायर x. ये बताया था मैंने. तो यहां पर आएगा 1 प्लस cos, जब उधर x है तो इधर 2x है, इधर 6x है तो इधर 12x होगा अपॉन 2. ये था. अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, जब इंटीग्रेशन होगा तब 12 से डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट इज, अभी 1/2 को हम ये ब्रैकेट हटा दिया है तो 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 बना दिया.
यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे अगेन 2 cos A cos B, so cos 8x प्लस सर समझ नहीं आया सेक एक्स 12 में कैसे कन्वर्ट हो गया? फार्मूला देखो ना, अपन सर उसे इधर इधर देखो ये, 3x भी लिख सकते हैं। अरे भाई पहले फार्मूला देखो ठीक से, इधर देखिए ये फार्मूला आपको क्लियर है? क्लियर है बोलो? यस सर। ठीक, यहां से हमने 1 को ट्रांसफर किया तो क्या हो गया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इधर से आ गया। इज इट ओके? यस सर। तो cos स्क्वायर x को आपने क्या लिखा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो x की जगह अगर 6x होगा तो क्या बनेगा 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, जो भी एंगल यहां होता है उसका डबल हो जाता है, जो भी एंगल यहां पर होगा स्क्वायर में उसका ट्वाइस हो जाएगा। अगर वहां 20 है तो यहाँ 40 हो जाएगा, 1 प्लस cos 40 अपॉन 2, 6x है तो 12x, ये 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस बी में फिर माइनस की जगह प्लस लिखा हुआ है, बाद में नहीं पूछना कि माइनस कहाँ चला गया, cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x होता है। ये इवन फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी है cos की, साइन और टेन में ऐसा नहीं होता, साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स इज माइनस टेन एक्स। सो अब ये 1/2 इसकी ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/4 होगा, वन बाई फोर now 1 plus 1/4 cos 12x dx, then 1/4 8x dx, 4x dx। क्लियर है? Now everything is splitted, 1/1 we have to integrate it, 1 का x होगा एंड सभी जगह पर 1/4 है तो हम 1/4 को कॉमन भी ले सकते थे, बट चलिए इंडिविजुअली ठीक है। नाउ दिस विल बी माही टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx क्या होगा, कल बताया था मैंने। सर वो कल मैं क्लास अटेंड आई थी। तो बाद में पूछना है ना, किसी से शेयर करना है, रिकवर करना है, सब कनेक्टेड है ना बेटा एक दूसरे से। खुशी यू टेल मी। Sir, it will be sin 12x upon 12. वेरी गुड, करेक्ट, साइन 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 साइन 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। सो इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये था 3 फंक्शन का केस। साइन 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 भी हो सकता है, और चूंकि ये थोड़ा लेंदी है तो नॉर्मली 2 फंक्शन से ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको मिलेंगे 3 फंक्शन के क्वेश्चन भी CBSE में पूछे जा चुके हैं। Anyone is having any query, please ask.
और ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा. cos 2x is 2 cos square x minus 1 as well as 1 minus 2 sin square x. These are two basic formula. Even before of these two, the main identity is cos 2x is cos square x minus sin square x, which is also derived by the formula of cos a plus b. We have just now in the beginning we have learned it. Cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. In this same identity we have substituted b equal to a. That is why this has become cos 2a cos square a minus sin square a. So it has become cos 2x is cos square x minus sin square x, and then this cos square keeping same, sign has been changed, 1 minus cos square x. So it has become cos square x minus 1 plus cos square x. This is this one, 2 cos square x minus 1. So this is very important result, cos a plus b. ये सब आपको बार बार करने ही पड़ेंगे, तभी आप इनको कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं. अभी और भी क्वेश्चन है जिसमें इनका यूज होने वाला है. इसी को जब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. द सेम आइडेंटिटी cos 2x. एंड इसको ट्रांसफर करते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस उधर जाता है तो 1 माइनस कॉस 2x बन जाता है. सो अभी हम जो यूज करने वाले हैं इसी के जैसा दूसरा फार्मूला, वो है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इज साइन स्क्वायर एक्स. देखिए ध्यान से, एंड प्लीज इसको कर लीजिए. बार बार इतना लंबा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, टाइम नहीं हमारे पास इतना. बेटा बहुत सिलेबस है, बहुत सारी चीजें हैं. अगर इतना डीप 11th लेवल से हमें शुरू करना है, समझना है, तो एक बार ही बताने का टाइम नहीं है. सो नोट कर लें, रिवाइज करें. दिस इज अनदर आइडेंटिटी. एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड ऑन दीज टू आइडेंटिटी. 1 minus cos and 1 plus cos. देखिए ध्यान से आप, वन माइनस कॉस तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर. लेकिन यहां x है तो यहां क्या होना चाहिए, सामने फार्मूला लिखा है, बताइए मुझे यहां पर क्या आएगा. Others, your answers are correct nowadays. Very good. Tell me. यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है तो यहाँ क्या आना चाहिए. सर साइन स्क्वायर एक्स. सर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. करेक्ट. जो यहाँ है उसका हाफ इधर है, जो यहाँ होता है उसका डबल यहाँ होता है. पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे ना 6x था तो 12x हो गया. तो अगर यहाँ x है तो ये x बाई 2 होगा. 2 कैंसिल हो गया तो ये बन गया 10 स्क्वायर x बाई 2.
And now, this was also explained yesterday. How to get integration of tan square x. बहुत अटेंशन चाहिए बेटा. मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे को बहुत बुरा फील होता है ना. आई डोंट फील हैप्पी कि मैं आपको बार बार रियलाइज करूँ. कल कराया था कि नहीं बताओ मुझे. साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर का बताया था कल. इसका सर tan x minus x plus c. But what is the next step that I want to ask, not the answer. सर वो sec square x minus 1 में कन्वर्ट Correct. करते हैं ना उसे. हाँ, मुकुल is there or not? मुकुल are you there? कल मुकुल को मैंने रियलाइज कराया था कि ये फार्मूला है उसमें. आज दिख नहीं रहा मुकुल. नहीं है. देखिए, कल मैंने बताया था ना आपको sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1. तो यहां से टेन स्क्वायर की वैल्यू आएगी sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. बट x बाई 2 है तो x बाई 2 हो जाएगा. क्यों किया ऐसा? क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसानी से निकाला जा सकता है. Sec square is differentiation of tan x, so integration of sec square x is tan x, and it is x by 2, so this will be x by 2, and its coefficient is 1 by 2, so divided by 1 by 2, minus 1 means x. So this is the answer, 2 tan x by 2 minus x. तो देखिए, इन आइडेंटिटीज का यूज बार बार हो रहा है, आगे भी होगा. क्लियर है? यस सर. ओके. तो ये सेकेंड, थर्ड, 6, 7, 8 ये सारे आप कर सकते हैं. 9th इसी पर बेस्ड है. इसी आइडेंटिटी पर देखिए, फिर से 9th लग रहा है. cos x upon 1 plus cos x. प्लस ही है. हाँ, तो अब इसमें 1 प्लस कॉस एक्स दिख रहा है. मतलब क्या करेंगे यहाँ पर? अभी बताया मैंने फार्मूला. अनुराग, आर यू देयर? अनुराग सर बताइए, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फार्मूला बताया था अभी मैंने? यहाँ लिखा था ना 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2. सर नहीं पता सर. तो नोट नहीं कर रहे हो क्या कॉपी में? नोट करना है ना बेटा. मैं क्यों कर रहा हूं बोर्ड पर? आपको कॉपी में नोट्स बनाने हैं. यस सर. ऐसे नहीं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा. नोट करते जाओगे तब जाके ब्रेन में वो फार्मूले, वो मेथड सेव होगा. So this is 1 plus cos x is 2 cos square x by 2, और cos x है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 1 plus cos x 2 cos square x by 2. तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या? सोचिए, cos x में क्या कर सकते हैं? आपके पास cos
2x के मैंने 3 फार्मूले बताए हुए यहाँ पर, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अभी बताया, फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीनों बताए थे आपको। तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है? तो पहले हम ओरिजिनल फार्मूला लिख के देखें। ओरिजिनल है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? देखिए, अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं दिस अपॉन दिस तो कैंसिल हो जाएगा, और दिस अपॉन दिस करेंगे तो 10x बाई 2 बन जाएगा, जो अभी अपन ने किया था 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। सो ओरिजिनल फार्मूला रखने से भी काम बन जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos square x by 2. You can take 2 away from this 1 by 2, and when denominator is having only one term, then you can split it. If it is x upon y plus z, this cannot be written as x upon y plus x upon z. Not correct. This is true only when denominator is single term. X plus y upon z can be x upon z plus y upon z. Make it clear. So we have done the same thing here. By splitting, this has been cancelled. 1 dx minus 1 by 2 tan square x by 2, which will be sec square x by 2 minus 1. So that was question number 9, like this. Now a quite different section of identity, that is sine to the power 4, cos to the power 4, tan to the power 4. Squared we have discussed, power 3 we have discussed yesterday. Now for power 4. Like yesterday, we can split it sine square x whole square, then sine square is 1 minus cos 2x upon 2 whole square. सर उससे पूरा सॉल्व कर दीजिए सर। किसको? सर जैसे अभी अपन ने जो अभी आपने इसके पहले बताया था, वो सर हो जाएगा h बाई 2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन h हो जाएगा। किसका? सर अभी आपने 9th बताया था। हाँ, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो x बाई 2 हो जाएगा, करेक्ट। और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का, माइनस 1 बाई 2। हाँ, और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 करके। यस सर। तो सेम ही है, सर कर लेंगे ये, आ है ना? जाएगा सर। हाँ, उसी से इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि ठीक पहले उसी को किया है। आप सोचिए, एक एक मिनट बचाने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, मेरे को कोई फायदा थोड़ी है। ऐसे प्लान करना पड़ता है पूरी क्लास की, पहले ये क्वेश्चन करेंगे तो इससे ये समझ में आएगा, अगले क्वेश्चन को वहाँ रखेंगे तो ये टाइम बच जाएगा 2 मिनट का। नाउ साइन स्क्वायर एक्स सर मैच नहीं हो रहा सर। पहला जो है ना h बाई 2, उसमें आंसर में अकेला h लिखा है, अपॉन 2 नहीं आ रहा है। आंसर मैच नहीं करना है, आंसर में डिफरेंट हो सकता है, आपको अपना मेथड सही रखना है। इंटीग्रेशन में कई मेथड होती हैं, मेथड चेंज होने से, मैंने अभी आपको वो कराया जो न्यूमरेटर में एक फार्मूला लगाया है, अगर आप फार्मूला बदल दोगे तो चेंज हो जाएगा। अगर सिर्फ h अपॉन 2 आ रहा है बस, वो 1 बाई 2 दिक्कत कर रहा है सर,
बाकी तो सब सही है। डोंट वरी अबाउट इट, आप जो कर रहे हो वो सही है, दैट इज इनफ। मैथमेटिकली आपके स्टेप करेक्ट होना चाहिए। आंसर तो बुक से मैच करना पॉसिबल नहीं है। जिसमें एक जगह पर 3 फार्मूले लग सकते हैं, उसका आंसर कैसे मैच होगा? क्लियर है? अभी Yes, देखो, sir. cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगाया है, अगर कोई उसमें 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगा देगा या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगा देगा तो बदल जाएगा आंसर। अब यहां पर क्या करना है, ये 1/4 आगे आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब हम आगे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बुक में नहीं है ये। मैं आपको अभी बताया था, कल हमने किए थे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, साइन क्यूब कॉस क्यूब टेन क्यूब। अभी साइन 4 कॉस 4 टेन 4। बुक में उस तरह से नहीं दिया है जिस तरह से हम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको इससे रिलेटेड बाकी सारे बन जाएंगे। तो साइन 4 है तो स्क्वायर का होल स्क्वायर किया और साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस 2x/2 लिया। देन 1/4 को बाहर करके a माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ इट इज 1 ओनली, सो इट विल बी 1/4 1 dx प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर को इसी तरह से चेंज करेंगे तो 1 प्लस कॉस हो जाएगा माइनस 2 एंड 1/4, तो ये हो जाएगा कितना, 2/4 cos 2x dx। अब मुझे बताना है रचित, यहां पर क्या आना चाहिए? वेयर सर? इसकी जगह पर हमने फार्मूला लगाया हुआ है, क्या आएगा? सर देखिएगा। चलो cos स्क्वायर 2x का फार्मूला क्या लिखोगे? cos स्क्वायर 2x में वही फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? cos स्क्वायर 2x। हेलो हाँ, cos स्क्वायर 2x का आंसर बताओ। कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ऐसा दिख रहा है। आवाज तो आ रही ना? यस। तो ऑडियो के बेस पर बोलो, cos स्क्वायर 2x का आइडेंटिटी क्या बनेगा? अभी जो बताया मैंने, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। cos स्क्वायर 2x। सर cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला। हाँ, क्या होगा? सर कौन सा वाला फॉर्मूला? अभी बताया ना मैंने, 2 फार्मूले बताए, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस वाले। जब यहाँ स्क्वायर होता है इसका डबल यहाँ आता है, 4x होगा। cos स्क्वायर 2x इज 1 प्लस cos 4x/2, so this is x/4 plus 1/8 1 dx plus 1/8 cos 4x dx। ये भी स्प्लिट हो गया एंड ये माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन अभी डिस्कस किया था, sin 2x/2। इसके बाद वैसे है जैसे हमने अभी किया हुआ है, x/4 प्लस x/8 प्लस sin 4x/4 माइनस 1/4
साइन 2x प्लस c। तो ये एक सेक्शन था जिसमें साइन की पावर 4 को हम कैसे कर सकते हैं। जिनकी स्क्रीन क्लियर है प्लीज स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर ब्लर आ रहा है तो जो क्वेश्चन का जैसे ये कंप्लीट आंसर है, नाउ प्लीज टेक इट्स स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी। आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप। अदर्स डू इट। तो मैंने सेंड किया है अभी आपको स्क्रीनशॉट। चलो मैं देख लूंगा। आई नो कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आई विल थिंक अनदर ऑप्शन। हम कॉपी पे करके, लेकिन कॉपी में भी करेंगे तो स्क्रीन तो वैसे ही दिखेगी वहां की भी। टैब वाला ऑप्शन देखते हैं। ओके, नाउ व्हेन इट इज साइन cos to the power 4, everything will be same. If it is cos raised to the power 4, only this minus will become plus. Make it clear. That I am giving you for homework. Please do it at homework. And homework today, integration of cos raised to the power 4x. Just like this, it will be 1 plus cos. Firstly, it will be cos square whole square. And then 1 plus cos 2x upon 2 whole square dx.